So very good evening to all the dear aspirants. Okay, I hope all of you are doing fine, right? Staying well, staying happy, also preparing well for your upcoming exam and staying motivated, right? So we have already started this particular series of DME, right? APDCL and other government exams which are we are targeting in Assam. So this 10,000 vacancy has become 22,728 vacancy now. So I would literally ask you to always attend the classes regularly because see now from 10,000 the vacancy has gone up till 22,000. Okay, so soon the post and the departments will be released by the Assam government. Okay, they are doing so much for the candidates, so you just have to work hard. Okay, inside this 22,000 vacancy you just need one seat, right? Only one job you need, so it's not that tough, you can easily try. Okay, so don't keep any gap, okay, in between your preparation, and always stay consistent. Okay, so with this thought, so we will come back to the topic that the topic which we were doing is direction. So yesterday I could see many comments coming up. I can see many students participating in the session, so I was really happy. Okay, even though the session is premiered, but still you all are giving all of your efforts, so that shows that how badly do you want to get a job, right? So, and that also getting job is not a big deal, but getting a good government job is a big deal, right? So I can see that in you. Okay, so without further ado, let's come to the class now. Okay, so the future belongs to those who believe in the beauty of the dream. Okay, so now you are dreaming, right, that I'm soon going to get a government job, right? মই জি টি নকৰোঁ কিন্তু মই গভৰ্ণমেণ্ট জব লৈ এৰিম। চ' এইটো তুমি এটা সপোন দেখিলা, চ' সেইটো তোমাৰ ফুলফিল হ'লে তোমাক নিজে ভাল লাগিব, ঠিক আছে। আৰু যোনে সপোন চায় ন, যোনে এটা মানে নিজৰ এটা মানে এইম বনাই লয় ন, তাৰহে সপোনটো সদায় পূৰা হয়, ঠিক আছে। চ' ইফ ইউ ড্ৰিম ইট, if you aim it, right, if you aim it, you can get it. Okay, so keep dreaming and keep the consistency and keep preparing. Okay, so বেছি lecture নিদিওঁ বাৰু, কোৰ্চত যাওঁ, ঠিক আছে। Okay, so আজিৰ আমাৰ টপিক কি হ'ব? So আজি আমাৰ টপিক হ'ব ডাইৰেকশ্যন, ঠিক আছে। চ' যোৱাকালিতো এটা ছেশ্যন গ'ল য'ত আমি বেছিক কুৱেশ্যনছ কৰিছিলোঁ, ৰাইট। এইবাৰ আমাৰ ছেশ্যন হ'ব কোডেড ডাইৰেকশ্যনছ। অ'কে, চ' এতিয়া বহুত টাইম পাই এইটো কুৱেশ্যনছ অহা নাই বাৰু এক্সামত, কিন্তু ষ্টিল আমি এটাও টপিক নেৰোঁ। অ'কে, উই উইল নট লিভ এনি ষ্ট'নছ আনটাৰ্ণড। অ'কে, দেয়াৰ ইজ এ ছেইং ইন ইংলিছ, ৰাইট, দেট ন' ষ্ট'নছ আনটাৰ্ণড, মানে এনেকুৱা পঢ়িম যে আমি চব পঢ়িম, এটাও বস্তু এৰি থৈ নাযাওঁ, ঠিক আছে। চ' দেটছ ৱাই উই উইল ডু ইট, এণ্ড উই মাইট নট ন' maybe in this exam it might come, okay, coded form, okay, because examiner knows that students are being able to solve the uncoded direction easily, so they might give coded one now. Okay, chalo. Okay, app features. Okay, download Adda 24/7 app now. Okay, go to Play Store, download it. ঠিক আছে, ইয়াত তুমি কি পাবা? প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবা, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাবা, জব এলাৰ্টছ পাবা, ডেইলি কুইজ পাবা, ছাবজেক্ট ৱাইজ কুইজেছ পাবা, মেগাজিন পাবা, কেপচুল, নোট, ভিডিঅ' সব পাবা, ঠিক আছে। এইবোৰ যে ভিডিঅ' তুমি ইয়াত দেখি আছা, সেইবোৰ তুমি তাৰ পৰা গৈ পেলাই তুমি আৰামছে ডাউনলোড কৰি পেলাই থৈ দিব পাৰা, ঠিক আছে। অ'কে, আচ্ছা, এটা বঢ়িয়া বস্তু এটা কৈ আছোঁ মই, ভাল বস্তু এটা এই এপৰ তোমালোকক কৈ আছোঁ মই। চ' তুমি যেতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিবা, ঠিক আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তুমি পঢ়িলা, ঠিক আছে, তাৰপিছত তুমি ডেইলি কুইজ লগাবা। অ'কে, আৰু এইবোৰ তোমাৰ ভাল কাৰণে হ'ব। অ'কে, এইটো নহয় কি জাষ্ট এপ ল'লোঁ থৈলোঁ হৈ গ'ল না, তুমি ইয়াতে কুইজ লগোৱা, ঠিক আছে, বিকজ GS অলছ' ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াতে তোমাৰ কি হয় ন, কইনছ পোৱা তুমি, ঠিক আছে। So this coins, what happens is that as you keep appearing for these quizzes and other things, your coins, it gets accumulated. তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা, এই coins তুমি use কৰিব পাৰিবা as a token to get yourself a course. Okay, আৰু যদি coins বেছি হয় তো তোমাৰ course মানে তুমি এনে ল'ব পাৰা, ঠিক আছে, any course that you want, ঠিক আছে। So this is the best thing in this particular app. So most of the app which you see, they do not give any benefit to the candidate. So here only by putting in your login details and also entering and then giving, just appearing a quiz also will give you coins, and this will help you get discount or maybe a course just for free. Okay, so try to accumulate as many coins as possible, right? So just staying in the app and just reading through daily affairs will also accumulate coins for you. Okay, so this is the main perk of our app, that is under 24/7. Okay, so if you haven't subscribed to our channel, kindly hit like button, subscribe, right, and also share it among your friends. Okay, okay, so under 24/7 notice is only for you, right? Okay, so morning মোৰ session চলি আছে 9 AM তোমালোক আহিও আছে, মই দেখি আছোঁ। আজি অলপ session প্ৰব্লেম হ'ল, অলপ নেটৱৰ্ক ইছ্যু চলি আছিলে, টেকনিকেল ইছ্যুজ কাৰণে ছেশ্যনটো ৰিস্কেডিউল কৰা হৈছিলে 3 PM, তাতো মই দেখিলোঁ তোমালোক আহিছিলে, চ' মোৰ ভাল লাগিলে। অ'কে, চ' অলৱেজ
keep attending the class. ইয়াতে আমি টাৰ্গেট কৰি আছোঁ CHSL এক্সামক, আৰু CHSL এক্সাম তোমাৰ এই অগষ্টত আহি আছে। চ' আশা কৰোঁ তোমালোক ওলাই ল'বা, ঠিক আছে। এটলিষ্ট tier 1টো ওলাবই লাগিব, ঠিক আছে। এইটো এটা মানে মনত তুমি সেইটো জোজটো থৈ লোৱা। চলো, চ' এতিয়া আমি আহি যাওঁ ডিষ্টেঞ্চ ডাইৰেকশ্যন ৰিজনিঙত, অ'কে। এতিয়া ইয়াতে কি হ'ল, যোৱাকালি আমি অলৰেডি বেচিক্স পঢ়িলোঁ, অ'কে। উই হেভ অলৰেডি ষ্টাডিড বেচিক্স, ঠিক আছে। বেচিক্স ইজ ক্লিয়াৰ। নাও উই জাষ্ট হেভ টু ষ্টাডি দ্য কোডেড ওৱান, ঠিক আছে। কোডেডত একো নহয়, ধৰা মই যদি ক'লোঁ A is, right, A is to the north of B, ঠিক আছে। এইটো ষ্টেটমেণ্ট পঢ়িলে তুমি আৰামছে বনাব পাৰা কি ছাৰ বি ইয়াতে আছে, চ' A to the north মানে ওপৰত গুচি যাব A, অ'কে। এইটো হ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াত কি হ'ব, ইয়াতে তোমাৰ অলপ বেলেগকৈ দি দিব, কি দিব, চ' A star B means that A is to the north of B, ঠিক আছে। এনেকুৱা দি দিব, তাৰপিছত তোমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট দি দিব B ক্ৰছ C, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াক কেনেকৈ বনাম, তো চোৱা, ধৰা তুমি Aত আছা, A লিখি দিলা, ঠিক আছে। চ' A star B means A is to the north of B, তাৰমানে বিৰ নৰ্থত থাকিব। চ' ইয়াক নৰ্থত থৈ পেলাই বি তলত বনাই দিম আমি, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট ইয়াক পাহৰি যোৱা, অ'কে। নেক্সট খালি বি আৰু চিক চোৱা। এতিয়া বিত আছোঁ আমি, বি কি হৈ যাব, বি নৰ্থ অফ চি হৈ যাব, তো এই তলত গুচি যাব তোমাৰ চি, ঠিক আছে। চ' চিৰ ওপৰত বি, বিৰ ওপৰত এ, তেনেকৈ আমি এইবোৰ ডায়েগ্ৰামছটো বনাওঁ, ঠিক আছে। দিছ ইজ হোৱাট ইজ ন'ন এজ কোডেড ডাইৰেকশ্যন, অ'কে। বহুত ভিডিঅ' চাবা তুমি, তাত এইবোৰ নকৰাই, ঠিক আছে। মই কিন্তু কৰাব ভাবিলোঁ, বিকজ আই ন' দিছ মাইট কাম, অ'কে। ট্ৰেণ্ডিং এক্সাম মে আ सकता है ये, অ'কে। বিকজ বহুত টাইম পৰা অহা নাই। চ' জেনেৰেলি এক্সামিনাৰবিলাক কি কৰে, আমাক শ্বক দি দিয়ে, ৰাইট। ফটকৈ দি দিলে তুমি ক'বা আৰে এইটো ক'ৰ পৰা আহি গ'ল, ৰাইট। চ' দেটছ ৱাই উই মাষ্ট বি প্ৰিপেয়াৰ্ড, অ'কে। উই মাষ্ট বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ দ্য ৱৰ্ষ্ট, ৰাইট। দেয়াৰ ইজ আ ছেইং ইন ইংলিছ, প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ্য ৱৰ্ষ্ট, ৰাইট। আচ্ছা, ঠিক আছে, এইটোতো হ'ল, বুজি গ'লোঁ, ঠিক আছে। ধৰা এনেকৈ এটা দিলে ক্ৰছ, ঠিক আছে। এণ্ড হিয়াৰ দে চে দেট A ক্ৰছ B means that B is to the west of A, অ'কে। এতিয়া চোৱা, তোমাৰ ইয়াত কি হ'ল, উল্টা হৈ গৈছে, ঠিক আছে। এনেকাও হৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম আমি, A ষ্টাৰ B বনাম। A ষ্টাৰ B মানে A তোমাৰ নৰ্থত থাকিব বিৰ, হ'ল, বনালোঁ। দিছ কণ্ডিশ্যন ফিনিছড। নেক্সট বি ক্ৰছ চি। এতিয়া বি ক্ৰছ চি হ'লে কি হ'ব, যে তোমাৰ পিছৰ লেটাৰ আছে ন, সেইটো আগত আহি যাব। চোৱা, A ক্ৰছ বিত বি আগত আহি গ'ল, বি ইজ টু দ্য ৱেষ্ট অফ A, তাৰমানে চি ৱেষ্টত হ'ব বিৰ, ঠিক আছে। ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যন কোনটো হয়, এইটো হয়। তো চি তোমাৰ ইয়াত আহি বহি যাব। এইটো বুজিছানে নাই কোৱা, বুজিলা, চিয়'ৰ, অ'কে, ইজি, ঠিক আছে। চ' আমি কোডেটো ভালকৈ বুজিম আৰু ছল্ভ কৰিম, ঠিক আছে। চলো, চ' এতিয়া কি হ'ল, আৰু বেছি বেছিক একো কনচেপ্ট নাই ইয়াতে, ঠিক আছে। যিমান কনচেপ্ট বুজাব আছিলে মই লাষ্ট ক্লাছতে বুজাই দিছোঁ। Yesterday's class was very important for direction. So if you have attended, then it will be really beneficial for you. If you haven't attended and you're coming into this class, so you can attend this class, but you also must attend the previous class first. Okay, previous class देखो और आओ, तब और मजा आएगा करने में question, ঠিক আছে। আৰু মজা লাগিব কৰি পেলাই। এতিয়া তুমি চাই লৈছা ন, তাৰপিছত তুমি আকৌ তাত যাবা, চাবা ন, তাৰপিছত তাত তেতিয়া তুমি লজিক শিকিলে মানে তেতিয়া ঠিকে লাগিব। কিন্তু তাৰ পৰা শিকি পেলাই যদি আহি পেলাই এইবোৰ কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰা ন, তেতিয়া তোমাৰ আৰু ভাল লাগিব, ঠিক আছে। सो दैट्स इट, ओके। अबाउट कॉन्सेप्ट इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ, बेसिक की हो पाए तो मैं ए इज 15 meters टू द नॉर्थ ऑफ बी, राइट। दैट मीन्स दैट এনেকৈ দি দিব পাৰে, বাকী আৰু একো নাই, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছ কৰোঁ, এবাৰ কুৱেশ্যনছ কৰিম ন, তেতিয়া তোমাৰ ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব বস্তুবিলাক, অ'কে। লেটছ গো টু দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন অফ দ্য ডে। দ্যাট ইজ ইচ অফ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যন ইজ বেছড অন দ্য ফলোইং ইনফৰ্মেশ্যন। চোৱা, ইয়াতে তোমাৰ কি দিয়া আছে, ইয়াতে তোমাৰ কোডছ দিয়া আছে, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াক আমাক ডিকোড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তেতিয়া আমি কি বনাম, ডাইৰেকশ্যন ডায়েগ্ৰাম বনাম, অ'কে। চোৱা, যেনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট দিয়া আছে A hash B means B is at 1 meter to the right of A. ইয়াতে নৰ্থ চাউথ দিয়া নাই, ৰাইট দিয়া আছে, একো নাই, ঠিক আছে। আৰু সদায় যেতিয়া ইনিচিয়েল পজিশ্যনৰ কথা হয়, ধৰা B, অ'কে। তো তুমি ক'বা ছাৰ বি কোনফিনে ফেচ কৰি আছে, এইফিনে। চ' আমি সদায় ল'ম প্ৰি ডিটাৰমাইন, যেনেকৈ ডিফল্ট ছেটিং থাকে আমাৰ ফোনত, এনেকৈ ডিফল্ট ছেটিঙত আমি ক'ম বি সদায় তোমাৰ নৰ্থ চাই আছে। ষ্টাৰ্টিঙত যদি একো মেনশ্যন কৰা নাই কোনে কি চাই আছে, আমি সদায় তাক নৰ্থ ফিনে চোৱা বুলিহে ভাবিম, অ'কে, ঠিক है, ओके। चलो, यही है, ओके।
So A hash B means B is at 1 meter to the right of A. এতিয়া চোৱা ইয়াতো কি হৈ আছে পিছৰ লেটাৰটো আগত আহি গ'ল আকৌ আগৰ লেটাৰটো পিছত গৈ পেলাই তোমাক ডিটাৰমাইন কৰি আছে ঠিক আছে তাৰমানে যদি মই ইয়াক বনাওঁ A hash B মানে কি হ'ব so B is 1 meter to the right so B লিখিলো ফাৰ্ষ্ট আৰু A or to the right of A so A or right পিনে বহাই দিবা ইয়াক হৈ গ'ল খতম ঠিক আছে A के right पे बैठा दो खत्म ठीक है और A फिने क्या बहाइছো because A is predeterminedly looking at the north direction okay পিছৰ তলত কোড চাই মই নাজানো মই তো ভাবিম যে এইটো A নটত আছে যেনেকা ৰাতিপুৱা উঠি তুমি কি কৰা তুমি দাঁত ব্ৰাছ কৰা right you go to the washroom you clean your teeth right that is the first duty of yours by hook or by crook you have to do that so this also is like that first position আমি কি ভাবিম that it is always facing towards the north ঠিক আছে okay আৰু তাৰ ৰাইটত আহি গ'ল আমাৰ B okay চলো done ঠিক আছে এটা যেনেকা $B means what B আকৌ B লিখিলো is at 1 meter to the north of A से north में तो A তলত আহি যাব B ৰ ঠিক আছে আৰু এতিয়া তুমি উল্টা চোৱা A চোৱা B ওপৰত গুছি গৈছে ঠিক আছে তো তেনেকা বহাম আমি ओके क्लियर चलो ये भी हो गया আৰু এটা স্টেটমেন্ট চাই লো বাকি নেক্সট কোশ্চেনত যাম ডাইৰেক্ট A star B মানে কি A star B মানে কি হ'ব আকৌ B আহিলে B লিখি দিয়া is 1 meter to the left of A মানে A ফিনে হৈ যাব সো ইয়াতে যদি A আছে তো left of A will be this side তো B আমি A ফিনে থৈ দিম ঠিক আছে জি লেটাৰ আছে তাক বহাই দিম তাৰ পিছত জাস্ট হিটো লেটাৰটো উঠাই পেলাই A ফিনে বা A ফিনে লগাই পেলাই আমি ৰাইট লেফট নৰ্থ সাউথ ইষ্ট জি আছে সব ওলাই লম ओके আৰু লাষ্ট আৰু এটা আছে এটো চাই লো আমি কুইকলি ओके लेट्स सी इट क्विकली ठीक है फटाफट देख लेते हैं A@B A@B ত কি আছে B আকৌ কৈ আছে B বহাই দিলো ঠিক আছে is 1 meter to the south of A और साउथত B আহি যাব তাৰ মানে A আমি ওপৰত বহাই দিম তেতিয়া B তলত আহি যাব সাউথ ক্লিয়াৰ है ना ইজি है ठीक है তোমালোক এনেও স্মার্ট আছা যেনেকৈ মই দেখি আছো যেনেকৈ তুমি আনসার্স দিয়া ওকে বহুত সেশনত ধৰা তুমি হেইবোৰ ক্লাস আগত কৰাও নাই তো মানে মই গম পাও তোমালোক বহুত স্মার্ট আছা তুমি আৰামসে জব লৈ লব পাৰিবা ঠিক আছে আচ্ছা এইটো মই গুছাই দি আছো ঠিক আছে লেট মি ৰিমুভ দিস ओके वी विल सॉल्व दिस चलिए सॉल्व करते हैं ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू x@b star p is in which direction with respect to x so first की करें x और b के साम ठीक है x@b माने की b तो b लिख लो राइट ए टू साम हां b this b okay b is 1 meter to the south of a माने यार ধৰা মই নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট লিখি দিও তো B সাউথৰ হৈ যাব তোমাৰ x ৰ সো x কোড বহাব লাগিব ওপৰত বহাব লাগিব অবভিয়াসলি তুমি কৈছা x ওপৰত বহাই দিও বহাই দিলো ভাই ওপৰত হল ওকে B is 1 meter to the south of A right সো ইয়াত কি হ'ব B তোমাৰ তলত আহি যাব x ৰ ঠিক আছে B is 1 meter to the south of x के पोजीशन के रेस्पेक्ट पे बोल रहे हैं तो इसलिए नीचे आ गया ठीक है नेक्स्ट B star P B से P जाना है B से P स्टार 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 ये रहा ठीक है स्टार में क्या बोल रहा है बी तो याद किया से बी আছে অলরেডি সো ইয়াতে নেক্সট লেটাৰ লিখিব লাগিব ফাৰ্স্ট পিছৰ লেটাৰ আগত লিখিলো সো পি লিখিলো ঠিক আছে পি পি ইয়াতো আহিব পাৰে ওপৰটো আহিব পাৰে ঠিক আছে এটো জাস্ট মই বুজাবৰ কাৰণে লিখি আছো ওকে P is at 1 meter to the left of A left of B হৈ যাব left of B B ৰ লেফট কোনটো হ'ব এটো হ'ব না নাই এটো হ'ব ন সো ইয়াতে বহাই দিয়া P খতম হল বাকি পি গুছাই দিয়া ঠিক আছে তো এতিয়া বাৰু এটো জাস্ট বুজাবৰ কাৰণে মই দিছো পিছত আমি এনেকে নি দিও ঠিক আছে আমি ডাইৰেক্ট সলভ কৰিম ঠিক আছে কেনে কৰিম চোৱা x@b means what b আগত লিখি আছো সো b লিখিলো ঠিক আছে 1 meter to the south of x তাৰ মানে তলত বহাই দিলো হল নেক্সট b star p তো p আমি লিখিব লাগিব p লিখিলো ঠিক আছে ইয়াত লিখিম মই নাজানো যটো লিখিলো তাৰ পিছত কি কৰিম আমি জাস্ট পঢ়িম কি আছে p is at 1 meter to the left of A এই আগৰ এলিমেন্টৰ লেফটত আছে সো আমি লেফটত বহাই দিলো শেষ খতম ঠিক আছে এটা কি ক'লে in which direction with respect to x p is in which direction with respect to किसका x के respect तो x के respect में p किधर है this direction is known as what southwest direction option number D is the right answer easy okay বুজি গলা সাগে right okay smart আছে মই গম পাও এনে বুজিবা তুমি লগ আনসারও দি আছে সাগে অলরেডি চলো let's do this now according to m hash n $t is in which direction with respect to m okay m hash n first আমি পিছৰ লেটাৰটো লিখিব লাগিব n লিখি দিলো হল এতিয়া m hash to চাও hash মানে কি পিছৰ লেটাৰ is at 1 meter to the right of the previous one right n অক right হ'ব লাগিব মানে m অক ইয়াত বহাই দিম মই তেতিয়া হে right হৈ যাব m के right पे n खत्म next t ধৰা মই ইয়াত বহাই দিলো ঠিক আছে ইয়াতো বহাব পাৰো ঠিক আছে श्योरिटी নহয় পহু কি আছে डॉलर में क्या होता है
पीछे का जो अल्फाबेट है इज एट 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ द प्रीवियस लेटर क्या था, ये था, इसके नॉर्थ टी का होगा, ऊपर होगा, ये रहा टी, आगे ऊपर, खत्म, ये टी को हटाओ, डन। ओके, टी इज एट 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एन, ये पहले वाले का, ठीक है। अब क्या पूछा है, टी इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एम, एम के रेस्पेक्ट में टी किधर है, टी इधर ऊपर है, दिस डायरेक्शन इज नोन एज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट, जहां हम रहते हैं, राइट। अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट जिंदाबाद, है कि नहीं, राइट। सो ये अगर डायरेक्शन है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है, जहां हम रह रहे हैं। ओके, वेरी गुड, लेट्स डू दिस क्विकली। पी हैश आर, तो पहले आर बनाएंगे क्योंकि पीछे वाला अल्फाबेट के बारे में पहले बता रहा है, ठीक है। आर हैश का मतलब क्या है, देखो, आर इज एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ द प्रीवियस वन, राइट, इसको राइट में होना है तो इस पे बैठाना पड़ेगा मुझे, पी, पी के राइट हो गया आर, ठीक है, डायरेक्शन भी बना देता हूँ, खत्म। आर डॉलर ए, डॉलर ए, तो ए यहाँ भी आ सकता है। चलो पढ़ते हैं क्या है, आर डॉलर में क्या है, तो पीछे वाला जो लेटर है ना वो 1 मीटर टू द नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ आर, नॉर्थ ऑफ आर मतलब ऊपर बैठा दूं, ये आ गया ए, ठीक है, ए আহিলে আমার, ঠিক আছে, ऊपर বহাইলো, খতম, এইবোৰ গুছাই দিয়া, ओके, এইবোৰ জাস্ট রেফারেন্স কাৰণে আমি লিখিছিলো। नेक्स्ट ए स्टार यू, तो यू यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं, स्टार में क्या होता है, तो पीछे वाला जो लेटर है यू, ओके, पीछे वाला जो लेटर है यू इज एट 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए का लेफ्ट क्या होगा, ये होगा ना, क्योंकि प्री डिटरमाइंड है कि सब हम लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, वी आर ऑल लुकिंग एट नॉर्थ डायरेक्शन, सो ये हो जाएगा, बाकी सब यू को हटा दो, खत्म, बन गया तुम्हारा डायग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं बिकॉज डायमेंशन का भी बात है, तो यहाँ पे भी ये इतना में ही रहेगा यू, ठीक है, 1 मीटर है ना सब, चलो सुंदर से बना लिया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज यू विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के का सर पे बैठा हुआ है, सर का मतलब क्या होता है, नॉर्थ नहीं होता, नॉर्थ होता ना, पी के सर पे बैठा हुआ है, राइट, he is sitting at the top of P, okay, so P ৰ ওপৰত বহি আছে, সেইটো কোনটো ডাইৰেকশ্যন হৈ যাব আমাৰ নৰ্থ। হেল্প কাৰণে তুমি এইটো সদায় বনাই থৈ দিব পাৰা ছাইডত, ओके, আৰু সলভ কৰিব পাৰা, কেতিয়াও ভুল নহয়। ইয়াত আছে P, U यहाँ, तो U हो गया ऊपर नॉर्थ में, ठीक है, चलो वेरी गुड, এইটো আমাৰ চলি আছে, এইটোহে বস্তু এতিয়া আমাৰ কি হৈ গ'ল 22,728 vacancy, okay, so this thing has become this, so see you just need one job in this many वैकेंसीज, राइट, इतने में बस एक ही चाहिए भाई हमें, उतने के लिए तो कुछ मेहनत तो कर ही सकते हैं ना थोड़ा, राइट। सो ज्वाइन इन एवरी डे, ओके, 9 AM में भी ज्वाइन करो, 1 PM में भी ज्वाइन करो, और शाम 6 PM में तो कर ही रहे हो, ठीक है। सो दिस आर द टाइमिंग, एंड वन मोर आई एम टेकिंग एट 8 AM मॉर्निंग विच इज DME बैच, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, ओनली 2 क्लासेस हैव बीन डन, सो इसको ज्वाइन कर लो, एनरोल कर लो, काफ़ी यू नो इट्स वेरी रीजनेबल द प्राइस, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, you can join in, okay, and you can attend my live sessions, okay, and then you can ask me live doubts, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारा एग्जाम निकल जाए, ओके। सो वी आर टारगेटिंग दैट यू कैन कंप्लीट दिस पर्टिकुलर सिलेबस बिफोर योर एग्जाम, ठीक है, ये टारगेट लेके मैं पढ़ा रहा हूँ वो बैच में, सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर बैच, ठीक है। मॉर्निंग 8 AM को चलती है क्लास रीजनिंग की, ओके, चलो, और कहाँ भी मिलेगी ये, तो अड्डा 24/7 ऐप डाउन करो, वही में मिल जाएगा, ठीक है। তুমি ৰিজনত যাবা, ৰিজন গৈ পেলাই নৰ্থ ইষ্ট মাৰিবা, নৰ্থ ইষ্টত চাবা, তুমি পাই যাবা, ঠিক আছে, DME 2.0, ओके। चलो, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, सेम, ठीक है, कोडेड का ही है, इस पे भी सेम है। A इज प्लस फ्रॉम पॉइंट B स्टेट्स B इज टू द नॉर्थ ऑफ A, अच्छा, मतलब ये बोल रहा है A प्लस B, ठीक है, इज फ्रॉम, ये सब कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं। So in short, I'm writing it here. This means A plus B, okay. This means A equal to B, okay. And this means A is parallel to B, and this means A is multiplied to B. जनरली स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन भी यही है, चलो बना लेते हैं, ठीक है, लेट्स मेक इट। S is equal, अच्छा, S is equal 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट P। इक्वल का मतलब क्या होता है, साउथ, ठीक है, और P पॉइंट पीछे है, S आगे है, तो मैं पहले P लिखूंगा बिकॉज P पीछे वाले एलिमेंट का बात करते हैं पहले, तो P लिख देता हूँ, ठीक है, P आ गया, ओके। इक्वल का मतलब क्या होता है, साउथ, तो अगर S के साउथ पे P है तो S को ऊपर बैठना पड़ेगा ना,
एस विल कम एट द टॉप एस एंड दिस विल बी 20। ये क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है? नहीं है तो फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, ठीक है? ध्यान से देखो यहाँ पे A is equal from point B says that B is to the south of A। अच्छा A is 20 मीटर, A is equal दिया हुआ है ना, equal 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है? पॉइंट P तो जो पीछे रहता है उसको आगे लिखते हैं, तो P को आगे लिख दिया, ठीक है? अब आगे में देखो S है और इक्वल है, इक्वल होने से क्या होता है, साउथ होता है ना, तो S का साउथ का होगा नीचे हो जाएगा, लगने से ये बना लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है सर? सो লাগিলে তুমি এইটো বনাই লোৱা আৰু ইয়াৰ হিচাপে তুমি চাই লোৱা, ঠিক আছে? হল ओके 20 मीटर हल 20 मीटर लिखी लो धुनियाके, खत्म। नेक्स्ट ये खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट Q इज इक्वल, अगेन इक्वल 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट R। अच्छा Q and R they have given but no relation with P, so let us draw it here, ठीक है? पॉइंट Q R को फर्स्ट वी विल राइट एंड पॉइंट Q इक्वल मीन्स Q ऊपर हो जाएगा 15 मीटर, क्यों? बिकॉज R इज साउथ ऑफ Q, दिस मीन्स R इज साउथ ऑफ Q, इक्वल मतलब साउथ होता है ना, सो इसको भी लिख लिया, ठीक है? ये भी खत्म। পিছৰ আমি ইয়াক জইন কৰি ল'ম, ঠিক আছে? যদি আমি কিবা এটা ষ্টেটমেণ্ট পাওঁ। নেক্সট पॉइंट U इज 15 प्लस 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट V, तो V लिखूंगा, राइट? V लिख लो, V लिखा, फिर प्लस का मतलब क्या होता है, नॉर्थ। V हो जाएगा नॉर्थ ऑफ हुम, पहले वाले का U, सो नॉर्थ ऑफ U ये हो जाएगा U, ठीक है? 15 मीटर लिख दिया, ओके ये पार्ट भी खत्म, ठीक है? VU की कहानी भी खत्म, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट T इज पैरेलल 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट V से T, तो V को पहले लिख दिया। अच्छा अब T यहाँ हो सकता है, यहाँ या फिर नीचे भी आ सकता है, ठीक है? और 20 मीटर है तो T तो यहाँ भी आ सकता है, ठीक है? T विल कम हियर, ठीक है? ओके बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 15 सो इट विल गो फर्दर, ओके? T पॉइंट T पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो ईस्ट, ठीक है? ईस्ट, सो T पॉइंट, एक सेकेंड, पॉइंट T सॉरी ज़्यादा घपला हो गया, चलो पॉइंट T इज पैरेलल 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट V से T को देखो, V से T को कहाँ दिखना पड़ेगा, ईस्ट में देखना पड़ेगा ना, पैरेलल का मतलब ईस्ट, तो V का ईस्ट कौन सा होगा, ये होगा, यहाँ आ जाएगा T, ठीक है? तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, T विल कम हियर, ओके? T विल कम हियर एंड दिस विल बी 20 मीटर, ओके? डन दिस पार्ट, श्योर, पक्का, ठीक है? ओके पीछे वाला ईस्ट ऑफ पहला वाला, ठीक है? ओके एक सेकेंड ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? पॉइंट T इज पैरेलल 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट V, अच्छा पॉइंट V के रेस्पेक्ट में ना, हाँ ठीक है, ओके? अच्छा फ्रॉम पॉइंट V, पीछे वाला यहाँ पे भी फ्रॉम पॉइंट V था क्या? पॉइंट U इज 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट V से 15 मीटर प्लस मतलब नॉर्थ, V से नॉर्थ, अच्छा ठीक है, हाँ वही है, सेम है, ठीक है? तो पीछे वाला आगे वाले को पीछे वाले के फॉर्म में देखो तो ये यहाँ नहीं होगा, V को ईस्ट पे होना पड़ेगा, तो V यहाँ आ जाएगा और T यहाँ आ जाएगा, ठीक है? T विल कम हियर 20 मीटर, ओके खत्म, राइट? नेक्स्ट पॉइंट U इज पैरेलल 60 मीटर फ्रॉम पॉइंट Q लिखेंगे पहले, ठीक है? और Q के रेस्पेक्ट में हम U को देखेंगे, ठीक है? 16 मीटर, ओके? पैरेलल मतलब क्या है, ईस्ट, Q का ईस्ट कौन सा होगा, ये होगा ना, सो Q का ईस्ट मतलब Q यहाँ आ जाएगा और U यहाँ चला जाएगा, ठीक है? हो गया, बन गया, एंड दिस इज 16, सो ऑब्वियसली आई कैन से दैट दिस विल कम टिल समवेयर हियर, राइट? एंड दिस इज Q एंड दिस इज 16 मीटर, क्लियर? फिनिश, दिस ऑल्सो इज फिनिश, क्लियर? लास्ट पॉइंट R, ओके? पॉइंट R इज 30 मीटर फ्रॉम पॉइंट P, अच्छा 30 मीटर फ्रॉम पॉइंट P, नाउ सी हियर I can match this figure with this, right? I can match it, right? So I can put R out here. R will come here, ठीक है? 15 meters I can write, right? From P, right? तो P जो है ना, P R से पैरेलल, R के ईस्ट पे होगा कितना में, 30 मीटर में, ठीक है? So R के ईस्ट में will be this side, so that means my final diagram will be how it will look. I'm drawing it here, ठीक है? My final diagram will look like this. R has come here, ठीक है? इसके 30 मीटर्स में P आ जाएगा, P 30 मीटर्स। इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ओके? मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? बट कोई बात नहीं, हमें करना होगा, ठीक है? अच्छा इसको हटा दूँ, हटा देता हूँ ना, बिकॉज फिगर्स तो बन गए हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो SP20, ओके ठीक है, ओके डन।
ओके ओके ओके, Q हैज़ कम, R हैज़ कम, P हैज़ कम, ओके। सो यहाँ पे अगर ये 15 है, दिस इज 15, दिस इज Q, राइट। सो इफ आई टेक इट देयर, P एंड S के बीच में 20 का गैप है, तो यहाँ तक 15 और यहाँ और ऊपर चला जाएगा S, ठीक है, 20। नेक्स्ट Q यहाँ से यहाँ पे है 16, तो यहाँ तक आ जाएगा बिकॉज दिस इज 30, 16 मीटर्स, राइट, 16 मीटर्स। नेक्स्ट हियर हु इज सिटिंग U, राइट, U के ऊपर और 15, सो यहाँ से ऊपर जाएंगे 15, राइट। तो इतना 15 हो गया, तो ये थोड़ा छोटा बनेगा, इतना ऊपर नहीं जाएगा, राइट। सो ही विल कम समवेयर हियर, ओके, S विल कम हियर, ठीक है, S इज हियर, ठीक है, ओके। U से 15 मीटर ऊपर, 15 मीटर ऊपर में कौन बैठा हुआ है? V, V is here and from here 20 meter will be here, ठीक है। So see, by using an idea that this line will be greater than that line, also we can get the direction। देखो अच्छे से फिगर बन गया है, ठीक है। There is no dangling in the figure, कोई खाली वाली पड़ा नहीं है, ठीक है, सब अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ओके। So by breaking down the point to point, we have made this, okay, we have got this diagram as our direction diagram। Now based on this, let them ask anything in the world, we can answer, okay। एज कंडीशन अप्लाइड के यही क्वेश्चन से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ और भी पूछ लिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। हाउ डिड वी मेक दिस डायग्राम इज क्लियर, डायरेक्शन डायग्राम पक्का, राइट, ओके। चलो क्वेश्चन पे आए, चलो क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट S एंड Q। अच्छा, S और Q के बीच का डिफरेंस क्या है? अच्छा, S इज हियर, ओके। सो इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ मैं। सो दिस इज Q, दिस इज U, दिस इज 16, ओके। नीचे में एक लाइन जा रही है 20, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? दिस विल बी 4, ठीक है। 16 + 4 विल बी 20, ओके। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? टिल हियर इट इज़ 15, सो 15 के ऊपर ये 5 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25, 16, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, राइट। सो एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? 25 + 16, सो एक्स स्क्वायर वी आर गेटिंग हाउ मच? 41, एक्स आ रहा है √41। चलो देखते हैं आंसर है क्या? √41, √41 नहीं है, नन ऑफ दिस, खत्म, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ओके, पक्का √41 नहीं है, नन ऑफ दिस, खत्म। नेक्स्ट, what is the shortest distance between the point T and the point which is to the east of Q। point T, ठीक है, T ये रहा, and the point which is to the east of Q, and the point which is to the east of Q। Q के ईस्ट पे कौन है? U। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ 20 मीटर होगा ना, खत्म, 20 मीटर आंसर। कहाँ है, कहाँ है? 20 मीटर तो है ही नहीं, ओके। क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गया क्या कुछ? देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट T एंड द पॉइंट विच इज टू द ईस्ट ऑफ Q। ईस्ट ऑफ Q, Q के ईस्ट में तो U ही बैठा है ना। अच्छा, दे कैन आस्क ईस्ट ऑफ U में एक तो U बैठा है, ठीक है। U बैठा है तो मैं बोलूँगा T से U का डिस्टेंस है 20, ओके, T से U। बट और एक बैठा हुआ है S, देखो S भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी तो बोल सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ कितना है? अगर ये 16 है तो यहाँ पे और 14 हो जाएगा, तो 20 + 14 विल बी 34। 34 है ऑप्शन में, 34 भी नहीं है, ठीक है। तो तब तो डायग्राम में कुछ गड़बड़ हुआ है, बट आई एम श्योर कि यू हैव गॉट द आइडिया कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूँ तो मे बी आई हैव डन सम मिस्टेक, ओके। डायरेक्शन लेने में हो जाता है, इंसान हूँ, राइट, ठीक है। सो आई एम गेटिंग हियर 34, राइट, एंड आई एम गेटिंग 20, ठीक है। ऑप्शन में दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्किप दिस, ओके। यू कैन डू इट योरसेल्फ एंड देन यू कैन रेक्टिफाई मी, कमेंट बिलो दी आंसर्स, ठीक है। चलो ये पॉइंट देख लेते हैं। U is in which direction with respect to P। U is in which direction with respect to P। U कहाँ है? यहाँ है। P किधर है? यहाँ है। P के रेस्पेक्ट पे U कहाँ है? ऊपर। ये कौन सा डायरेक्शन होता है? सो ऐसे बनाएंगे अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। सो देखो, इट माइट हैव बीन दैट ड्यू टू डूइंग इट क्विकली, ओके, जल्दी जल्दी करने में थोड़ा डायग्राम में कुछ गड़बड़ हो गया, बट आई होप यू हैव गॉट द आइडिया हाउ टू कंस्ट्रक्ट द डायग्राम, ठीक है। हाउ टू रीड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट द डायग्राम, ठीक है। इफ यू गेट द करेक्ट आंसर यू कैन कमेंट बिलो, ओके, बट आई एम जस्ट कीपिंग दिस एज द रेफरेंस। मान लो यही है फिगर, अब इसमें जो पूछा है वही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग यू द हिंट हाउ टू सॉल्व इट। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, यू एड वन मोर पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है।
दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस क्वेश्चन 4 to 7 है ना, इस पे एक नया पॉइंट आ गया z, ठीक है। z इज अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 46 मीटर फ्रॉम पॉइंट u टूवर्ड्स वेस्ट। चलो पहले ये डायग्राम उठा के यहाँ रख देता हूँ मैं, ठीक है। सो पूरा खिचड़ी बन गया है भाई डायग्राम का। ये नहीं था ना, हाँ ये नहीं था, 15 ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ओके, और ये भी नहीं था। चलो ठीक है, ओके ये हटा देता हूँ। ये था ना फिगर जो हमने हमें मिला था, ठीक है। माइट बी सम मिस्टेक बट आई एम श्योर यू गॉट द आइडिया, ठीक है। सो इसको यहाँ बना लेता हूँ फटाफट, ठीक है। ये ऐसे आ गया, उसके बाद दिस हैज़ गॉन लाइक दिस, राइट, लाइक दिस, ठीक है। देन इट हैज़ कम लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम दैट वी हैव गॉट, ओके। आंसर मैच नहीं हो रहे तो इस पर कुछ गड़बड़ होगा थोड़ा सा, ठीक है। देयर माइट बी सम मिस्टेक, सो यू रेक्टिफाई इट, ओके, बट आई एम जस्ट टेलिंग हाउ टू डू इट। SPRQVT, SPRQUT, और यहाँ पे क्या है, RQUV, अच्छा ये है, ठीक है। 20, 16, 15, 20, 15, 16, ये भी 20 है ना, हाँ जी ये भी 20 है, S, ओके। नीचे में क्या है, 30 and 15, ओके, 30 and 15, ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं आप, ओके। 15, अच्छा, ठीक है, ओके, लेट्स डू इट क्विकली, ओके। Z is a point, Z is a point which at a distance of 46 meter from point U, which is at a distance of 46 meter from point U towards west। अच्छा point U किधर है, यहाँ है, ठीक है। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। सो फ्रॉम पॉइंट यू हैव टू गो 46 मीटर्स, राइट। सो यहाँ तक 16 है, 16 से यहाँ और कितना जोड़ना पड़ेगा, 30। इफ आई टेक 30, राइट, दैट टाइम आई विल गेट 46 एंड हियर हु इज सिटिंग z, ओके, ठीक है। और वेस्ट है तो इस साइड, यू के इस साइड आ गया, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट S एंड पॉइंट Z। S और Z के बीच में क्या डिस्टेंस है, ओके। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट S एंड पॉइंट Z एंड इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू S। S के रेस्पेक्ट में Z कौन सा डायरेक्शन में, पहले वो देख लो, ये डायरेक्शन, राइट, ऐसे नीचे आ रहा है, दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो ऑप्शन में नहीं है, तो आई विल टेक नन ऑफ दिस। तो पक्का अभी कंफर्म हो गया कि ये डायग्राम गलत बना है, ठीक है। बट आई होप यू आर गेटिंग दी आइडिया कि क्या हो रहा है, राइट। তুমি বুজি গলা চাগে, ঠিক আছে। ইয়াতে ডায়গ্ৰাম অলপ ভুল হৈ গ'ল আমাৰ, ঠিক আছে। মে বি ইয়াতে কি ভুল হৈছে ন, এই ইয়াতে ভুল হৈছে, ঠিক আছে, দিছ ওৱান, ओके। सो इफ आई रेक्टिफाइड क्विकली, ओके, इफ आई रेक्टिफाइड क्विकली, S इज इक्वल 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P मतलब P के रेस्पेक्ट में S कहाँ है, S इज इक्वल, इक्वल मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब साउथ होता है, ठीक है। तो S हो जाएगा साउथ में, S नीचे आ जाएगा, ठीक है। बट वहाँ पे हमने उल्टा ले लिया, ठीक है। सो एटू अलग भूल हो तलत आहिब, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट P बोला है ना, इक्वल फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। इक्वल माने कि है, जस्ट एटू चाब लगे, इते कोने कि आहिছে एटू चाब नालागे, ओके। इते फ्रॉम যদি নিয়ে ন, S is equal 20 মিটাৰ পইণ্ট P, তেতিয়া আমি এইটো ফলো কৰিম, বিকজ ইয়াতে পিছৰ যে লেটাৰ আছে সেইটো আগত আহিব, ঠিক আছে। এইটো এনেকৈ বনিব 20, ठीक है। Q is 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट R, R के रेस्पेक्ट में Q 15 मीटर, इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब साउथ, R के रेस्पेक्ट में Q नीचे आ जाएगा, 15 मीटर हो गया। ऐसे बनाओगे फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट बना ही देता हूँ फटाफट। पॉइंट U is 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट V, V से U प्लस, प्लस मतलब क्या होता है नॉर्थ, U से नॉर्थ पे, U से नॉर्थ पे हो जाएगा V 15 मीटर, ठीक है। आई होप यू गॉट दी आइडिया। ইয়াতে আমি অলপ উল্টা বনাই দিছিলোঁ, ঠিক আছে। সো ইয়াতে একচুৱেলি ফ্ৰম ৱৰ্ডটো মই ভালকৈ চোৱা নাই, ন'টিছ কৰা নাই জল্দি জল্দি, অ'কে। সো যদি ইয়াতে ফ্ৰম নাছিলে, অ'কে, ইফ ফ্ৰম ৱাজ নট দেয়াৰ, S is equal 20 meter point P, that time we will use this, okay, because here if you see, right, see A is plus from point B means B is to the north of A, right। तो यहाँ पे ऐसे करके हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सब उल्टा हो रहा है, तो दैट्स व्हाई डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। सो आई होप यू विल रेक्टिफाइड योर सेल्फ, यू सॉल्व इट, ओके। आई एम पुटिंग द क्वेश्चन हियर, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लो, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, सॉल्व इट एंड देन यू टेल मी दैट सर वी हैव गॉट द आंसर, ठीक है।
you take the picture and then you solve and tell me the answer. ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ हो गया, right? Okay, I will move to next question. Okay, I'm skipping this question. Okay, others how you see how you solve is okay, right? ठीक है. So and one more thing, see in this particular exam this particular questions are very cunning. You have none of these option. ठीक है, तो जहाँ में आंसर नहीं आ रहा ना तुम none of these करोगे और गलत हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर गलत आ रहा है, नो प्रॉब्लम, इंसान में गलत हो गया जल्दी जल्दी में. ठीक है, तुम सही से बना लो एंड वंस यू हैव डन ओके यू कैन लेट मी नो इफ यू गेटिंग द आंसर और नॉट. ओके, चलो नेक्स्ट. Okay, so this is a very good course which is present in our Adda 24/7 app, so you can kindly enroll to this course. ठीक है, so out here you go, you use my code along with it. Okay, you will get special discount. Okay, so benefit of this course is that suppose there are many exams coming up now. Okay, 22,000 vacancy, DME, ADR, APDCL, right? So all syllabus, right? It's almost similar, but some places few topics are there, few topics are not there. So this all thing will be elaborated in this particular course. Okay, so this course will cover all the exams. Okay, ऐसा एक भी एग्जाम नहीं बचेगा ना जो जिसके लिए तुम प्रिपेयर नहीं रहोगे. Okay, you just do this course and you'll be prepared for almost 10 to 15 exams. ठीक है, सब आसाम में जो एग्जाम होते हैं ना उसके लिए you will be prepared. Okay, except APSC because APSC थोड़ा लेंदी है और उसके फैकल्टीज भी अलग हैं. ठीक है, सो APSC नहीं है यहाँ पे, बट बाकी के जितने एग्जाम है APDCL, असिस्टेंट मैनेजर ले लो, फिर यू नो DME, ADRE, टारगेट 22,000 वैकेंसी, एनी एग्जाम यू कैन इजीली क्लियर बाय एनरोलिंग योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर आसाम महापैक. ठीक है, CTET एग्जाम के लिए भी हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है, इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड यू वांट टू जॉइन अ स्कूल लाइक KV, राइट, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम. ठीक है, so you can join here and here also you'll getting ebook for free. ठीक है, PDF, study material, mocks भी मिलेगा, सब मिलेगा. Use my code, right, and you'll get some more discount in it. Okay, you can go to the app and check out, right, the features, even routine and all, everything is given. Okay, okay, let's do this question now. अच्छा, easy question है, फटाफट करते हैं. ठीक है, we will not take too long, right? Let's do it quickly. For that previous question, I want you all to do it and comment in the comment section below. ठीक है, okay. चलो, A is to the east of B, मतलब if B is here then A will be this side, A east. ठीक है, okay. B is to the north of C, C के नॉर्थ पे B आ गया, B ऊपर चला जाएगा, right? C is to the south of D, C is to the south of D. अब देखो इस पे दो केस हो सकते हैं. One case if D is at the top, you can say that C is in the south, and one more case will be there that B, A, right? Out here is D and out here is C. ये भी हो सकता है ना, right? But they haven't given any relation between B and D. ठीक है, and they are asking this particular question. Now let's see what they are asking. Then B is in which direction with respect to D? अच्छा देखो, it is not defined. ठीक है, if you see here with respect to D, B is in north. ठीक है, ऊपर है north, and out here with respect to D, B is in south, right? सो नॉर्थ साउथ दोनों भी है आंसर में. ठीक है, तो इस पर क्या देंगे हम, कांट बी डिटरमाइन. ठीक है, वी कैन नॉट डिटरमाइन इट बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, इट कैन हैपन दैट D is at the top, that time also C is in the north, and it can happen that D is at the bottom, that time also C is in the south. ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू दिस. ओके, P cross Q means P is to the north of Q. ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. ओके, दैट वाज मेंस लेवल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बिकॉज देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस एज वेल. ओके, और जल्दबाजी में मैंने भी गलत कर दिया. ठीक है, सो स्पेयर मी फॉर दैट. ओके, डू नॉट जज मी बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन. ओके, कि सर तो कर नहीं पाए. ठीक है, सो होता है, हैपेंस, राइट, प्लस इवन आई एम टू टायर्ड टुडे, राइट. ओके, लेट्स डू इट. ठीक है, बट आई विल स्टिल कीप माई एनर्जी फॉर यू. ओके, आई एम हियर जस्ट फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. चलो ठीक है, क्रॉस देंगे तो मतलब नॉर्थ. ठीक है, और यहाँ पे P आगे ही है तो P आगे लिखेंगे और करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है. ओके, यू शुड बी हैप्पी. एंड मतलब ईस्ट, डॉलर मतलब साउथ, एंड एट द रेट मतलब वेस्ट. खत्म. फर्स्ट इज D, आई एम राइटिंग इट हियर, एंड इफ इट्स नॉट विजिबल E, डॉलर, F एंड G, क्रॉस H एट द रेट E. ओके, H का डायरेक्शन बताना है विद रेस्पेक्ट टू F. F से H कौन से डायरेक्शन में वही बताना है.
ठीक है. सो वेन एवर यू डोंट हैव कैलकुलेशन राइट, दैट ऑल्सो इज अ बोनस फॉर यू. जल्दी जल्दी डायग्राम बनाओ, डायरेक्शन बताओ और निकलो. ठीक है, चलो. D and E. And means what? And means D is to the east of Q. तो D हो जाएगा E के ईस्ट में. ओके. D is to the east of Q. ठीक है, ईस्ट ऑफ Q. तो Q से D हो जाएगा ईस्ट में. राइट. नेक्स्ट E डॉलर F. ठीक है, इसमें मत कभी ना D आ गया तो अब D से देखेंगे F को. ना ना ना, जो दिया है वही देख देख के जाएंगे. ठीक है, अब E एंड F को देखेंगे. ई डॉलर एफ. ई डॉलर एफ, डॉलर 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 डॉलर. डॉलर मतलब हो जाएगा कि साउथ. ठीक है, ई इज टू द साउथ ऑफ एफ. तो क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे हम दोनों को. यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा. क्लियर है, दिस पार्ट ऑल्सो डन. नेक्स्ट एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी. देखो एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी एंड आ रहा है. एंड का मतलब एफ इज टू द ईस्ट ऑफ जी. ईस्ट ऑफ जी मतलब ईस्ट ये हो जाएगा और जी यहाँ आ जाएगी, आ जाएगा वट एवर इट इज. ठीक है, ठीक है, ओके. ईस्ट हो गया. नेक्स्ट जी मल्टीप्लाई बाई एच. मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई मतलब होता है सर, क्या होता है? P इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, G इज टू द नॉर्थ ऑफ H. राइट, तो नॉर्थ ऑफ H मतलब यहाँ आ जाएगा H और G ऊपर चला जाएगा. ओके, ठीक है. एट द रेट E. H एट द रेट E. H एट द रेट E का मतलब होगा H इज टू द वेस्ट ऑफ E. वेस्ट ऑफ E, वेस्ट मतलब इस साइड हो जाएगा. तो E आ गया क्या फिर से? E, अच्छा, तो वेस्ट हो जाएगा. तो देखो मैंने एक्चुअली H को थोड़ा नीचे लिखा था, ओके, ताकि तुम्हें एक चीज़ समझाऊं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो बता दिया, तो अभी हम लोग को समझ आ गया कि ये यहाँ आ गया H और ये ऐसे बनेगा. ठीक है, तो डायग्राम बन गया अच्छे से. अभी हम लोग आंसर दे सकते हैं. ठीक है, बट समटाइम्स ओके, इफ दे विल नॉट मेंशन ई हियर, ओके, ई इज नॉट हियर. ठीक है, मान लो ई यहाँ पे है ही नहीं. ठीक है, यहाँ पे ई है ही नहीं, तो एच क्या हो सकता है? एक तो एच हो सकता है कि यहाँ आ गया थोड़ा ऊपर. ठीक है, एच कैन बी हियर, राइट, ई के थोड़े ऊपर. नेक्स्ट एच कैन बी एग्जैक्टली विथ ई अलाइंड, अच्छे से अलाइंड. नेक्स्ट और एक हो सकता है कि एच और नीचे चला गया ई के. राइट, आप देखो इसके वजह से डायरेक्शन बदल सकता है. डायरेक्शन क्या है? एच इन विद रिस्पेक्ट टू एफ. एफ के रेस्पेक्ट पे निकालना है. ठीक है, यहाँ पे तो चलो प्री डिटरमाइनली सारे एफ के डायरेक्शन में तुम्हारा क्या आ रहा है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. सो वी आर गेटिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, साउथ वेस्ट हो जाएगा आंसर इसका. ओके, बट एग्जाम में ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हें तीनों ऑप्शन मिले. ठीक है, तो वो टाइम में ना नन ऑफ दिस मार कराना. ठीक है, नन ऑफ दिस. ओके, आउट हियर क्या हो गया ना कि फर्स्ट आई डिड नॉट नो कि जी क्रॉस एफ क्रॉस जी, जी क्रॉस एच में कितना डिस्टेंस है. ठीक है, अब तो यहाँ पे एट द रेट ई भी है, तो चलो अच्छा है. जी क्रॉस ई में क्या बोला है? तो जी इज टू द नॉर्थ ऑफ एच. तो नॉर्थ ऑफ एच, तो एच तो यहाँ भी आ सकता है, राइट, एच यहाँ भी आ सकता है, एच यहाँ भी आ सकता है. ठीक है, सो आई डिड नॉट ड्रॉ द प्रॉपर thing, okay, because we did not know, right? We have drawn h here, right? But now as we have seen that h at the rate e means what? H at the rate e means that h is to the west of q. So west of q कैसा होगा? ये तो सीधा ही आना पड़ेगा ना, सीधा. ठीक है, टेढ़ा तो नहीं जा सकता वो, तब तो साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा. बट सीधा आएगा तो इट विल कम हियर. ठीक है, एग्जैक्टली at the same line where your e is sitting. Now we can answer h is in with direction with respect to f. f के respect में h का है, नीचे है. This is southwest. Answer is option number 1. So that option we have already ticked, okay, but just make sure that in exam you keep in mind all these points. ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन बदल देता, अगर पूछता h is in which direction with respect to e, ठीक है, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि e के रेस्पेक्ट में h हो गया वेस्ट. ठीक है, बट अगर ये कंडीशन नहीं देते हम, ठीक है, if that condition was not there, then what would have happened? First condition would be where h will be here. Second condition can be there where h will be at the top, थोड़ा ऊपर. और third condition will be there that h can be at the bottom. ठीक है, अब देखो सारे डायरेक्शन बदल रहे हैं, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ में भी अलग. ठीक है, सो इन सच क्वेश्चन यू विल टिक कैनॉट बी डिटरमाइन. ठीक है, और अगर नन ऑफ दिस है तो नन ऑफ दिस भी मार देना. बट कैनॉट डिटरमाइन एंड नन ऑफ दिस में अगर ऑप्शन आया सो यू विल टिक कैनॉट डिटरमाइन. ठीक है, वी कैनॉट डिटरमाइन, नॉट नन ऑफ दिस. Okay, none of these I have explained yesterday. Suppose here was one more option, then none of these. Okay, now I can see that here I cannot define the position of h because h can be anywhere, right? So here I don't have cannot be determined, so I will tick none. Okay, but if there was one more option that cannot be determined, okay,
कैनॉट बी डिटरमाइन, तब कौन सा टिक करूंगा, आई विल टिक कैनॉट बी डिटरमाइन, नॉट नन ऑफ दिस, बिकॉज हियर एक्चुअल प्रॉब्लम इज दैट आई कैनॉट डिटरमाइन, ओके, नॉट नन ऑफ दिस, मतलब ये ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं है, एंड ऑल्सो इट मीन्स दैट আনসাৰ তোমাৰ আহি আছে, ঠিক আছে, কিন্তু এইবোৰ অপশ্যন তোমাৰ সেই আনসাৰটো নাই যে তুমি ওলাইছা, চ' নান অফ দিছ মানে ডেট, সেইটো মানে দ্যাটছ দ্য মিনিং অফ নান অফ দিছ, ঠিক আছে। আৰু কেন বি ডিটাৰমাইন মানে ডেটা ইনএডিকুৱেটো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, মানে क्लियर व्यू नहीं है, अनसर्टेन केस है, ठीक है, एच ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट ये क्वेश्चन तो इजी था, राइट, यहाँ पे ऐसे दे दिया @e दे दिया टू यू नो इट मे मेक इट ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स, @e दे दिया तो मतलब एच यहाँ में होगा, एच यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा, ओके, एच विल सिट हियर साइड टू ई, ठीक है, वैसे में, चलो क्लियर है, ओके। सो APSC फाउंडेशन बैच, इफ यू हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन ACS ऑफिसर यू कैन एनरोल टू दिस कोर्स, ठीक है, इस पर एनरोल हो जाओ बढ़िया से, राइट, और अपना सपना पूरा करो ACS ऑफिसर बनने का, राइट, ভাল লাগিব তোমালোক ACS অফিচাৰ হ'বা, ৰাইট, ৰেড লাইট গাইড আহিবা মোক লগ কৰিব ন है कि नहीं, चलो मतलब जस्ट यू नो इट्स नॉट बैड टू ड्रीम, राइट, कुछ नहीं जा रहा है ना, ड्रीम करो, कौन क्या बोलेगा, राइट, इट्स नॉट बैड टू ड्रीम, ओके, एंड ड्रीम्स कैन कम इन टू रियलिटी, ओके, इट डज कम इन टू रियलिटी, यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग, ठीक है, पेशेंस रखना है, dreams do come into reality, okay, so you can enroll in this batch, okay, and use my code along with it, that is Y788, okay, and you will get 70% डिस्काउंट, ठीक है, ये कोड लगा देना मेरा, तुमको और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, वैसे भी डिस्काउंट में ही है, अभी ये लगाओगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, इससे सस्ते में ACS ऑफिसर बनना मुश्किल है, ठीक है, सो टू बिकम एन ACS ऑफिसर यू नीड अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, ओके, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन इन योर लाइफ. So here they will give you the tactics of doing those also, okay, how to make your routine, okay, and how to prepare and everything all over, मतलब सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, चलिए, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, सो इट इज अबाउट टू बी टाइम, लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, सो विल रीड आउट द क्वेश्चन. सो y star x star y means y is to the left of y at a distance 7 मीटर, अच्छा डिस्टेंस सब अलग अलग है, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा, चलो ये सही बनाएंगे, ठीक है, ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा मेंस लेवल टाइप का ही क्वेश्चन है, बट वी विल सॉल्व इट स्लोली स्टडीली एंड करेक्टली, चलो लेट्स सॉल्व. अच्छा, तो सारे क्वेश्चन अलग है तो सब के अलग अलग फिगर्स बनाने पड़ेंगे हमें, सबसे पहला बात है, लेट्स डू इट, ओके, लेट्स डू इट, चलो, आई एम राइटिंग इट हियर, b @d %v #h @k, ठीक है, चलो, b @d मीन्स व्हाट, b इज टू द राइट ऑफ d, ठीक है, इस पे b और d ऐसे मान लो दिमाग में, ठीक है, xy मत पढ़ो, थिंक दैट इज गिवन एज bd, ठीक है, b इज टू द राइट ऑफ d, तो d के राइट पे b आ गया यहाँ पे, ठीक है, एंड डिस्टेंस भी है, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस 3 मीटर, तो थोड़ा छोटा होगा, ज़्यादा दूर बना दिया, 3 मीटर ऐसे प्यार से बना देंगे, 3 मीटर छोटा सा, ठीक है, नेक्स्ट bd डिलीशन खत्म, dv, d%v means d is to the north direction of v, नॉर्थ मतलब d ऊपर जाएगा और v नीचे आ जाएगा, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 9, अरे बाप रे ये तो थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है, 9 मीटर हो गया, लंबा बना दिया, यहाँ पे कौन आ गया, v, क्लियर, ओके, v#h means what, v is to the south direction of h, राइट, h तो है ही नहीं यहाँ पे, राइट, अच्छा v नीचे है, सॉरी, v साउथ है h के कितने मीटर में, मीटर 5 मीटर, अच्छा अगर ये पूरा 9 है तो मैं बोल सकता हूँ कहीं यहाँ पे हो जाएगा 5 मीटर, राइट, एंड हु इज सिटिंग हियर, h इज सिटिंग हियर, ठीक है, क्लियर है ना, देखो फिर से पढ़ रहा हूँ, v#h मीन्स v इज टू द साउथ डायरेक्शन, ठीक है, v इज टू द साउथ डायरेक्शन क्योंकि v पहले है, टू h एट अ डिस्टेंस 5 मीटर, ठीक है, ये 5 मीटर हो गया, ये 9 मीटर, तो 9 मीटर को हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको लिख देंगे मैं 4 मीटर, ठीक है, टोटल 9 एंड दिस इज 5, सो दैट विल बी 4, फिनिश. नेक्स्ट, h @k मतलब h इज टू द राइट ऑफ k किधर है, अच्छा k तो है ही नहीं, बट k के राइट में कौन होगा, h इज टू द राइट ऑफ k, तो k यहाँ आ जाएगा, राइट, तब जाके ना h राइट पे आएगा, k, ठीक है,
एंड लेट्स सी द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, चलो प्यार से बना देंगे 3 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, पक्का, ठीक है। h at the rate k मीन्स k h इज टू द राइट ऑफ k, सो k के राइट पे h बनाएंगे। और यहाँ पे क्यों बनाया, बिकॉज हम लोग हमेशा नॉट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, प्री डिटरमाइंड डिफॉल्ट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन, देन इन विच डायरेक्शन इज k विद रिस्पेक्ट टू d। d के रेस्पेक्ट में k कहाँ है, तो k नीचे है, ये कौन सा होता है, ये होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, श्योर, शैल वी मूव फॉरवर्ड। चलिए प्यार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम, लेट्स डू इट क्विकली। s एट द रेट, डू नॉट राइट ऑल दिस इन योर एग्जाम, क्वेश्चन देख देख के सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा टी आर दे दिया डायरेक्टली, अच्छा है, बीच में कुछ होना चाहिए ना, परसेंटेज m स्टार u, ठीक है। एक काम करो, लेट मी टेक समथिंग, स्टार म्यू आ गया, यहाँ पे हैश बना दो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया, ठीक है, here one thing is missing, it's okay, let it be hash। now let's solve, you solve and tell me the answer quickly, okay, I'll give you 1 minute, चलो फटाफट सॉल्व करो, ओके, नॉट 1 minute 30 seconds, ज़्यादा हो जाएगा 1 minute है, इजी क्वेश्चन है ना, ओके चलो 20 seconds more, राइट। ओके टाइम अप, चलो लेट्स सॉल्व, ठीक है। s एट द रेट t मीन्स व्हाट, s एट द रेट t मीन्स s इज टू द राइट ऑफ t, तो t के राइट पे s लिख दूंगा, ठीक है, और 3 मीटर होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ पढ़ के ना मुझे याद भी हो गया, ठीक है, डिस्टेंस 3 मीटर था, ठीक है, 3 मीटर था ना, हाँ क्या, हैश t हैश r, t हैश r, हैश का मतलब t इज टू द साउथ ऑफ r, r के साउथ पे होगा t, तो एक काम करते हैं, r को ऊपर लिखता हूँ, t को नीचे लिखता हूँ, और इसको s बना देता हूँ, और यहाँ पे 3 मीटर लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर है ना हैश में, नहीं 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 ओवर स्मार्ट हो गया, ठीक है, इससे है 5 मीटर, ओके, थोड़ा छोटा बना दे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 5 मीटर, 5 meters, ओके, आई एम मेकिंग इट लाइक दिस, ठीक है, दिस इज r, ओके डन, डन सर, दिस ऑल्सो डन। नेक्स्ट, r परसेंटेज m, r परसेंटेज m मीन्स r इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ m, m के नॉर्थ पे है, सो मतलब m का नॉर्थ का होगा, m का नॉर्थ ऊपर हो जाएगा, ठीक है, राइट, सही है ना, r परसेंटेज m, r इज टू द नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ m, ओके, m तो m नीचे आएगा। अच्छा परसेंटेज में कितना है 9 मीटर, तो ये पूरा नीचे चला जाएगा, थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, चलो डायग्राम, ओके, थोड़ा छोटा हो गया, r 5 मीटर, राइट, t एंड दिस इज 3 मीटर s, ओके ओके, नाउ r m में m विल कम डाउन, ठीक है, m's नॉर्थ, ओके, r m के नॉर्थ पे होगा कितना 9 मीटर, राइट, सो थोड़ा छोटा बना देता हूँ, राइट, m, right, so this is 5, then what will be this is 4 meters, right, because 9 मीटर है टोटल, ओके क्लियर है, फिर से बोल रहा हूँ, देखो r परसेंटेज m मीन्स r इज टू द नॉर्थ ऑफ m, दैट्स व्हाई m नीचे r ऊपर, ठीक है, r को ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि r नॉर्थ में है m के कंपैरिजन, एंड 9 मीटर है, तो फ्रॉम r टू t इज 5 मीटर, सो t टू m हाउ मच विल इट बी टू मेक इट 9 मीटर, 4 मीटर, क्लियर, ओके नेक्स्ट, ओके, m स्टार u, m स्टार u, m स्टार u, दैट मीन्स m is to the left of u, m is to the left of u, that means u यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, u will come here, and distance बताओ फटाफट, 7 मीटर्स, थोड़ा ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, 7 मीटर्स u यहाँ आ गया, क्लियर है, पक्का, अरे क्या हो गया ये, वाह क्या लाइन बनाया है कि नहीं, लेट्स सी नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन, then t is in which direction with respect to u, u के रेस्पेक्ट में t कहाँ है, t is here, right, u के रेस्पेक्ट में तो u से ऐसे एरो बनाएंगे और t को मार देंगे, ठीक है, t को मार देंगे तो क्या हो जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, सो एक्चुअली द क्वेश्चन was incomplete, so it is going there, so I am just making north west, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है मुझे क्या पता, ठीक है, बट आई एम टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट सिंबल सो दैट सब सिंबल का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट क्लियर है ना, ईजी है, ठीक है, कर लोगे ना एग्जाम में पक्का, यू विल नॉट लेट मी डाउन, आई नो यू कैन डू इट। ओके चलो लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन क्विकली, ठीक है। ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फटाफट बनाएंगे। आर हैश एम, ओके आई एम नॉट राइटिंग इट, आई एम ड्राइंग इट डायरेक्टली। आर इज टू द साउथ ऑफ एम, अच्छा आर इज टू द साउथ ऑफ एम, एम बना दिया, और हैश में कितना होता है 5 मीटर, 5 मीटर बना दिया, खत्म। नेक्स्ट एम एट द रेट एन, एम इज टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट पे होगा तो एन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एट द रेट 3 मीटर हो जाएगा, छोटा बनेगा थोड़ा, ओके 3 मीटर, ओके डन, राइट, डन 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 डन, एट द रेट में 3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट एन स्टार ओ, एन स्टार ओ मीन्स एन इज टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट पे मतलब ओ यहाँ आएगा, ठीक है, ओ, और डिस्टेंस कितना होता है स्टार में 7, तो ये 3 है तो यहाँ पे और 4 मीटर्स पे आ जाएगा ओ, ठीक है, टोटल 7, राइट, टोटल इज कितना, दिस इज 7, सो दिस इज 3 एंड दिस विल बी 4, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, डन, ओ भी डन। ओ परसेंटेज पी, ओ परसेंटेज पी मीन्स ओ इज टू द नॉर्थ ऑफ पी, पी के नॉर्थ पे तो पी नीचे आएगा, डिस्टेंस 9 तो बहुत लंबा बनेगा, ये 5 से यहाँ तक, इफ दिस इज 5 देन आई हैव टू गो सम मोर टिल 4 मीटर्स टिल आई रीच पी, ठीक है, दिस इज 9 मीटर टोटल, क्लियर, ओके। नेक्स्ट लास्ट पी हैश क्यू, हैश मीन्स पी इज टू द साउथ डायरेक्शन ऑफ क्यू, क्यू के साउथ तो क्यू ऊपर होगा, और डिस्टेंस 5 मीटर, राइट, 5 मीटर, सो आई कैन से क्यू विल बी समवेयर हियर, ठीक है। सर वहाँ पे क्यों लिया, अरे भाई देखो यहाँ से यहाँ अगर 5 मीटर है तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक 4 मीटर होगा, और अगर क्यू को जाना है कितने मीटर तक, क्यू को जाना है 5 मीटर तक, राइट, इफ दिस इज 5 तो ऑब्वियसली ये लाइन को क्रॉस करके ही जाएगा ना ऊपर में, है कि नहीं बताओ, राइट, अंडरस्टूड। चलो ठीक है, यहाँ पे 5 मीटर लिख देंगे और ये हो जाएगा 4 मीटर, से सुंदर से बना ही देंगे, ठीक है। चलो अब क्या क्वेश्चन है देखते हैं। देन क्यू इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में क्यू कहाँ है, तो क्यू यहाँ है, और ये कहाँ है जहाँ हम हैं, नॉर्थ ईस्ट, ओके। सो सी वी हैव ड्रॉन द डायग्राम एक्यूरेटली एंड वी आर गेटिंग द आंसर ऑल्सो एक्यूरेटली, और यही आंसर्स है, ठीक है। बस इसका थोड़ा डाउट है मुझे, कहाँ चला गया ये वाला, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अच्छा ये छूट गया क्या एक बीच में क्वेश्चन, लेट मी सी, ओके हाँ ये, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, चलो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। ई हैश एफ, तो फटाफट करता हूँ, ई इज टू द साउथ ऑफ एफ एंड डिस्टेंस इज 5 मीटर्स, 5 मीटर दे दिया, ओके। लेट्स डू नेक्स्ट एफ स्टार एच, एफ स्टार एच में एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट पे होगा कितने में 7 मीटर, तो थोड़ा लंबा बनाएंगे 7 मीटर एच, ओके। एच परसेंटेज जी, एच इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ जी, एच नॉर्थ हो जाएगा जी के कितने में 9 मीटर, बहुत लंबा बनेगा 9 मीटर जी, ओके। जी स्टार आई, जी स्टार आई मीन्स जी इज टू द लेफ्ट ऑफ आई, लेफ्ट ऑफ आई यहाँ पे कितने में 7 मीटर, तो ये भी थोड़ा लंबा बनेगा, लो बन गया फटाफट, देखा ऐसे क्विकली बनाना है, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एच, ई यहाँ है एच यहाँ पे है, ये होगा, राइट, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 25, एक्स स्क्वायर विल बिकम हाउ मच 72, राइट, एक्स विल बी आउट रूट 72, ठीक है। अच्छा रूट 72 में मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू 6√2, ठीक है, 6√2 आ रहा है क्या, नहीं, देखो एक बार यहाँ पे 8 इंटू 9, राइट, 9 का रूट हो जाएगा 3, रूट 8 का होता है 2√2, तो 3 इंटू 2√2 दैट इज 6√2, ऑप्शन नहीं आ रहा, नन ऑफ दिस हो गया राइट आंसर, ठीक है, नन ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। रूट 74 तो हाँ सॉरी 9 + 5 इज 14 ना, 74, रूट 74 हो गया आंसर, ठीक है, नॉट नन ऑफ दिस, आंसर डी, 4th इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है, वैसे भी तुम बोर हो गए, राइट, यू ऑल आर बोर्ड नाउ, इट्स टू लॉन्ग, तो चलो, सो आई एंड द क्लास हियर माय डियर aspirants, right, so I was happy that you have joined, okay, so kindly prepare well, okay, and so no difficulty level is more than this, इससे ज़्यादा difficult level होता नहीं है डायरेक्शन का, ओके, याद के बेसिक टफ क्वेश्चन डायरेक्शन 9 बने तुम्हारा,
জেনেৰেলি বনিব পাৰে তোমাৰ SBI PO আৰু তুমি যদি IBPS PO এইবোৰ এক্সাম দি আছা তেতিয়া হ'ব পাৰে অলপ হ'ব, বেছিও নহয়, সেইবোৰ তুমি কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। ইটছ নট দেট ইউ কেনট ডু, ইউ কেন ডু ইট, অ'কে। জাষ্ট কি হয় ন, সেইবোৰ এক্সামত তোমাৰ স্পীড অলপ লাগে, অ'কে। এইবোৰ এক্সামতো স্পীড লাগে, কিন্তু নট টু দেট লেভেল, অ'কে। বিকজ ইয়াতে তোমাৰ কি থাকে ন, তুমি মেনেজ কৰিব পাৰা টাইমিং, অ'কে। इन सच एग्जाम यू गेट कॉम्पोजिट टाइम, साथ में ना 2 आवर्स लाके तुम्हारे हाथ पे रख देंगे, ओके। তোমাৰ হাতত থৈ দিব 2 আৱাৰ্ছ আৰু ক'ব তোমাক যেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিব আছে তুমি ইউটিলাইজ কৰা, ঠিক আছে। কিন্তু SBI হয়তো অলপ কি কয়, সিহঁতৰ নিজৰ ৰুল থাকে, নহয় তোমাক মই 20 মিনিটছ দিম এটা ছেকশ্যন কাৰণে, 20 1 ঘণ্টা, অ'কে। চ' সেইটো টাইমত তোমাক জল্দি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াত তুমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। ধৰা তুমি ৰিজনিঙত বেছি টাইম লৈ লৈছা, ঠিক আছে, তো ইংলিছ ছেকশ্যন অলপ স্পীডকৈ কৰিবা, অ'কে। চ' দেট টাইম মেনেজমেণ্ট উইল বি দেয়াৰ, অ'কে। চ' এইবোৰ এক্সামত এইটো এটা ভাল হয়, কম্প'জিট টাইমিং পায়। চ' কেণ্ডিডেটছে নিজৰ মতে যেনেকুৱা ভাল লাগে সেই হিচাপে কুৱেশ্যনছ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। খালি বেংক এক্সামবিলাকত কি হয়, ছেকশ্যনেল টাইমিং থাকে, তো তাতে মানে কি হয় ন, তোমাক চব ছেকশ্যনৰ স্পীড এটা আনিব লাগে, তেতিয়াহে এইটো মানে ক্লিয়াৰ হ'ব তোমাৰ, অ'কে। চ' বিং এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ মাই চেল্ফ আই ন' আই হেভ ফেচ অল দিছ। চ' একো নাই, আমি কৰি থাকিম একেলগে আৰু হৈ যাব, ঠিক আছে। এনেকুৱা নহয় নহ'ব, ইটছ নট টু ডিফিকাল্ট, অ'কে, এণ্ড ইটছ নট টু ইজি এজ ৱেল। চ' ইটছ ইন বিটুইন, দেট ইজ মডাৰেট। চ' মিডিয়াম লেভেলৰ মেহনত কৰিলেও হৈ যাব তোমাৰ, ঠিক আছে। আৰু আমাৰ মটিভ হয়, মেইন মটিভ ইজ টু জাষ্ট গেট এ জব, অ'কে। এক্সাম নিকালনা है, জব और लेना है, ठीक है। একদম নলেজ লৈ পালেও এক্সাম যদি ওলাব নোৱাৰোঁ তো কি লাভ আছে, ৰাইট? নো ইউজ, ৰাইট? চ' আৱাৰ মেইন মটিভ ইজ টু জাষ্ট গেইন নলেজ টু দ্য চাৰ্টেন লিমিট, অ'কে। ব্ৰেইন है, वी आर ह्यूमन, we have the tendency to forget, okay? So you should not learn everything, okay? যাহা গম পাইছোঁ ইয়াতে এটা ক্লাছ কৰিলা, তাৰপিছত তাত গৈ পেলাই আৰু এটা ডাইৰেকশ্যন ক্লাছ কৰিলা, তাতে এটা ট্ৰিক শিকলা, সেইটো তুমি লিখি ল'লা, তাৰপিছত আৰু এটা ক্লাছ কৰিলা, তাতো এটা ট্ৰিক শিকলা, সেইটো লিখি ল'লা। ইমান বেছি তুমি তোমাৰ মাথাত নাথাকিবই, পিছত কনফিউজ হৈ যাব, সেইটো কৰিম নে এইটো কৰিম নে এইটো কৰিম, অ'কে। আৰু এটা মেথড যাবা, আনচাৰো নাহিব, ঠিক আছে। তো অলৱেজ ইট ইজ বেষ্ট ন টু ষ্টিক টু ওৱান লেন। ইয়াত চাব নালাগে, নিজৰ লেন চাই গৈ থাকা, লাষ্টত তুমি ডেষ্টিনেশ্যন পাই যাবা, ঠিক আছে। বেছি এইপিনে চালে কি হ'ব, এক্সিডেণ্ট হ'ব। চ' বাৰু এনে কৈছোঁ, এক্সিডেণ্টটো হয় বাৰু। চ' দেটছ ইট। So thank you all. Thank you for joining in. I hope this class was really helpful for you. So you can comment below what's the next topic that you want me to teach, okay? And comment now itself to the end of the video so that I can see it, okay? And then I can put it in the next class tomorrow, okay? So well, thank you. Keep practicing, my dear aspirants, okay? I'm always there for you. And peace. Eat well, sleep well, go for a walk, evening time, right? Good hours. So, and study. Chalo, thank you.